Hello everybody, welcome to Fast Classes. Today we are with a video for you all containing English class 10 chapter A Wrong Man in Workers' Paradise written by Rabindranath Tagore. So let's move on and see about the lesson. But before that, learners, if you are visiting my channel for the first time, do subscribe my channel and hit the bell icon so that you get the notifications of my video. So let's learn about the author learners. So the author of this chapter is Rabindranath Tagore and is also known by his pen name Banu Singha Thakur and also known by his sobriquets means several other names like Gurudev, Kabir Guru and Biswa Kabi. He was a Bengali poet, writer, music composer, and painter from the Indian subcontinent. So we see here that Rabindranath Tagore was a well known and a very famous personality. He is the author of this chapter. So let's learn the chapter. What do we have here? So, students and the learners, the man had never believed in mere utility. Like whatever is satisfaction, the man never believed in it, and they did not have the complete satisfaction in the life. So, having had no useful work, he indulged in mad whims. सो here we are learning. यहाँ पर हम एक आदमी के बारे में पढ़ रहे हैं जो जो कोई भी यूजफुल काम नहीं ना होते हुए कुछ भी फालतू के कामों में बिजी होता था. मैड विम्स लाइक एनी अननेसेसरी वर्क्स. He made little pieces of sculpture, men and women, and castles, quaint earthen things dotted over with seashells. तो वो अपना सारा जो वक्त था कहाँ निकालता था स्कल्पचर करने में, मतलब मूर्त बनाने में. वो कभी मैन वुमेन कैजल्स एंड दूसरे जो अर्दन पॉट्स होते हैं लाइक अर्दन थिंग्स, वो सारे चीज़ बनाया करता था विद द हेल्प ऑफ सी शेल्स ऑल्सो. ही यूज टू मेक स्कल्पचर्स एंड देन ही पेंटेड इट. फिर उसे वो पेंट करते थे. Thus he wasted all his time on all that was useless. तो इसी तरीके से ये जो पर्सन है, he used to waste all his time in useless and needless work. जो काम के नहीं होते थे, जो बेकार के काम होते थे, वो सारी चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करता था ये बंदा, ये इंसान. The people laughed at him at times. He vowed to shake off his whims, but they lingered in his mind. तो कई बार लोग उन्हें आके बताया करते थे, बोलते थे, उन्हें इंसल्ट भी करते थे, बट ही जस्ट लाफ्ड एंड ही जस्ट मूव्ड हिज माइंड फ्रॉम इट. वो कोई किसी के बात में तवज्जो नहीं दिया करते थे. देन जिस तरीके से होता है कि seldom some boys fly the books and yet pass their test means some boys who do not touch their books but even then too they pass their tests luckily. तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो कभी बुक नहीं पढ़ते, किताबें नहीं पढ़ते, बट फिर भी आखिर में वो पास हो ही जाते हैं. वो कुछ उनका फेट, उनका लक होता है. उसी तरीके से यहाँ पर भी इस इंसान के साथ कुछ हुआ. समथिंग हैपेंड लाइक दैट, अ सिमिलर मैनर. He spent his earth life in useless work, and yet after his death, the gates of heaven opened wide for him. So, even in the same way, this person was very lucky to enter the heaven because the gate was wide open for him without doing any useful work in the earth. ओके तो जिस तरीके से वो अर्थ में कोई भी काम यूजफुल नहीं किया, कुछ भी, फिर भी मरने के बाद उसके लिए जो हेवन था, जो जन्नत था, उसके दरवाजे खुल गए थे. तो दिस वाज लकीली फॉर हिम. Then moving finger writes, but the moving finger writes even in heaven. So luckily, नसीब कभी भी चमक सकती है. You say you can, your fate can take you anywhere in the heaven also. So it came to pass that the angel messenger who took charge of a man made a mistake and found him placed in workers' paradise. तो इनको लक कैसा साथ दे गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो एरियल मैसेंजर था, जो जो मैसेंजर उन्हें लेकर गया था वर्ल्ड से हेवन में, उन्होंने मिस्टेक कर दिया था. ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, ही बॉट रॉन्ग पर्सन इन रॉन्ग प्लेस. तो इस तरीके से उनकी तो लक खुल गई, उन्हें तो मज़ा आ गया. He got a very good luck there. He enjoyed his life in the paradise. In this paradise, you find everything except leisure. तो ये जो पैराडाइज में ये एंटर हुए, वहाँ पे उन्हें सब कुछ मिलेगा बट उन्हें फ्री टाइम नहीं मिलेगा. इस तरीके का पैराडाइज था. और ये इंसान, ये जो ह्यूमन था, वहाँ चला गया था. ही हैड बीन प्लेस्ड इन दैट
in that place, in that category where he will get everything but not leisure, no free time. Then God, we haven't a moment to spare. Women whisper. वहां पर सब एक दूसरे से बात करते होते हैं कि हमें तो वक्त ही नहीं मिल रहा है, कितना काम पड़ा हुआ है, टाइम कितना प्रेशियस है, इतने सारे काम हैं और एवरी सिंगल मिनट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, किस तरीके से हम काम करें, और ये सब कहते हुए वो बहुत हैप्पी थे. Okay, so this man, when he enters, he saw that everyone is busy in their work, and the women are whispering to each other that let's move on quickly, let us finish our work because time is very precious and we have so much of work to do, and every single minute is very important for us. And yet, those words, with that words, they were very happy and self contented. Okay, so then next, this newcomer who had passed all his life in the earth doing scrap of useful work did not fit in this scheme. तो ये जो ह्यूमन था, ये जो बंदा था, जो अर्थ में बिना कुछ काम किए वर्कर्स पैराडाइज में आ गया था, उसे ये जगह फिट नहीं हो रही थी. इट वाज नॉट सूटेबल फॉर हिम. वो यहाँ वहाँ घूमता रहता था और एक दूसरे से टकराते रहता था, जो कि दूसरे लोग जो बहुत ही जल्द में होते थे अपना काम कंप्लीट करने में. So he used to jostle the herring man, he used to dash and he used to just walk here and there. और फिर वो जिस ग्रीन मेडोज ग्राउंड में ले करके चुपचाप लेट कर अपना टाइम पास करते थे, जो स्ट्रीम्स, जो नदी नहरें थे वहां पर उसे देखा करते थे, और जो बिजी फार्मर्स काम करते थे बस उन्हें देखा करते थे और टाइम पास करते थे. So this person, he just passed his time by seeing the streams and the busy farmers who are working there. Then a bustling girl went every day to a silent torrent, and she used to fill the pitchers. Pitchers are pot. So she used to fill these pitchers with the water from the torrent, from the stream, and she used to move very hurriedly. सो ये गर्ल जो थी, एक बसलिंग गर्ल वहां से जाया करती थी, एक जो नहर बह रहा था वहां से वो अपने मटके में पानी भरा करती थी और जाती थी, और रोजाना उसका यही काम होता था और वो उससे बहुत बिजी होती थी. और उनका जो स्टेप्स था वो बहुत रैपिड होता था, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता था. उनके पास टाइम नहीं था उस लड़की के पास कि वो अपना बाल बनाए या फिर अपने आप को संवारे. और दिस वाज आल्सो सीन लाइक the girl's hair was carelessly done. She did not have any time to take care of herself or to get well dressed because she was so much busy in her work. And this idler was standing by the stream as a princess sees a lonely beggar and is filled with pity. So the busy girl of heaven saw this one and was filled with pity. So this girl, when she saw this boy, this person, being sitting very idle without doing any work, was standing idly without doing any work by the stream. So this girl felt pity on him that he doesn't have any work to do. Okay. तो ये लड़की क्या करती है, उस आइडल को देखती है कि ये बंदा चुपचाप खड़ा हुआ है, इसके पास कोई काम नहीं है, और उसे उसके ऊपर रहम आ जाता है, दया आ जाती है. फिर वो उसके पास जाती है और देखिए क्या कहती है. Ah, she cried with concern. You have no work in hand, have you? The man sighed. Work? I have not a moment to spare for work. तो वो लड़की इसके पास जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए. तो वो बंदा कहता है, वो इंसान कहता है, काम? मेरे पास वक्त ही नहीं है काम करने के लिए, मैं इतना बिजी हूँ. So when the man says like this that I don't have time to work or spare the time for work, she was much confused. She did not understand. I shall spare some work for you to do if you like. तो फिर भी वो गर्ल कहती है उसे कि अगर फिर भी आपको कुछ काम चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ. If you want, I can give you some work from my side. Then the man replied, Girl of silent torrent, all this time I have been waiting to take some work from your hands. फिर कुछ सोच कर वो मैन बोलता है कि हाँ, मैं बहुत देर से कुछ काम लेने के लिए, तुम्हारे से कुछ काम लेने के लिए वेट कर रहा हूँ. आई बीन वेटिंग टू टेक सम वर्क फ्रॉम यू ओनली, वाज वेटिंग फॉर इट. सो शी आस्क्ड, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू लाइक, वुड यू लाइक, क्या काम करना पसंद करोगे? विल यू गिव मी वन ऑफ योर पिक्चर्स, वन दैट यू कैन स्पेयर? तो वो कहता है कि दो पिक्चर आपके पास है, जो पॉट आपके पास है, क्या वो आप मुझे दे सकते हो? तो ही आस्क्ड फॉर द पिक्चर व्हिच द गर्ल वाज हैविंग. देन शी आस्क्ड, व्हाई अ पिक्चर, डू यू वांट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द टॉरेंट? शी आस्क्ड लाइक दिस. वो पूछती है कि तुमको टॉरेंट से, स्ट्रीम से पानी भरना है पिक्चर में, मेरे पॉट में? तो वो जवाब देता है, नो, आई शैल ड्रॉ पिक्चर्स ऑन योर पिक्चर. मुझे कुछ
तस्वीरें बनानी है आपके पिक्चर में, आपके पॉट में, क्योंकि वो मड पॉट था तो उसमें ड्राइंग किया जा सकता था। तो उसको ड्राइंग करने के लिए, बिकॉज ही वॉज अ स्कल्पचर, ही यूज्ड टू डू स्कल्पचरिंग एंड ऑल, ही ऑल्सो एन आर्टिस्ट, सो ही वांटेड टू ड्रॉ पिक्चर्स, तो उसे ड्रॉ करना था। तो गर्ल वॉज अनॉयड, गर्ल को बहुत गुस्सा आया, शी वॉज वेरी एंग्री। पिक्चर्स इंडीड, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट ऑन सच एज यू। वो उसे गुस्से में चिल्लाकर झटकी देकर चली जाती है वहां से। शी सेज आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन यू, एंड शी वॉक्स अवे देयर फ्रॉम देयर। Then, but how could a busy person get the better of one who had nothing to do? Every day they met, and every day he said to her, "Girl of a silent torrent, give me one of your clear pictures. I shall draw pictures on it." So this man, every day he used to ask that girl, he used to see that girl moving to the silent torrent, and she used to just fill the pot with the clay pictures and used to move. And he used to every day ask and request her to lend him one picture. तो इस तरीके से रोजाना वो उस लड़की से पॉट मांगा करता था। शी yielded at last, she gave him one of her pictures. तो इससे तंग आकर वो लास्ट में गुस्से में डांट कर उसे एक मटका अपना दे ही देती है। At last she gave him one picture. Then the man started painting and he drew many lines on it with many colors on it. तो वो जो बंदा होता है उसे जब मिल जाता है मटका तो वो बहुत सारे उसमें पेंटिंग करता है, बहुत तरीके तरीके का लाइन ड्रॉ करते हैं और कलर करता है उसमें। एंड जब कंप्लीट हो जाता है तो वो पिक्चर वापस वो लड़की को दे देता है और उसके आईज पजल हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते हैं। शी वॉज टोटली पजल्ड व्हेन शी गॉट द कंप्लीटेड पिक्चर विद द आर्ट, विद द पेंट एंड विद द ड्राइंग एंड द कलर्स। देन she was very much confused. She was thinking for the first time there's something which has no meaning and nothing to serve any purpose. And she was very much confused. She took the pot to her home and she started scanning around and seeing under the light and in silence again. She kept the pot, and again at night she got up. Again, she silently just went through it. Ki, what is the purpose of it? तो ऐसा हुआ था कि वो पॉट पे जो ड्राइंग देख रही थी वो पहली बार कुछ ऐसा देखी थी जो बिना कोई पर्पस के, बिना कोई यूज के कोई चीज उसके सामने आया था और वो बहुत ही कंफ्यूज थी। और वो उसे घुमा फिरा कर पॉट को सारे एंगल से देख रही थी कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों ड्रॉ किया गया है, इससे क्या फायदा है। बट उसे कुछ समझ नहीं आया। वो रात को फिर उठकर अपना लाइट जलाकर उसे चुपचाप देख रही थी, क्योंकि उसने सब कुछ ऐसा पहली बार देखा था जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। Then, when she set out for touring the next day, her hurrying feet were little less hurried than before, for a new sense seemed to have awakened in her, a sense that seemed to have no meaning and no purpose at all. तो नेक्स्ट डे जब वो जाती है साइलेंट टोरेंट के पास पानी भरने, अब उसके जो कदम होते हैं थोड़े स्लो हो जाते हैं, क्योंकि वो बिजी हो जाती है कुछ ऐसे काम में जिसमें कोई मतलब या कोई पर्पस नहीं होता है। लाइक शी वॉज बिजी थिंकिंग in something which has no meaning and no purpose at all, because she has seen something for the first time and she is busy, she's using her mind and time in thinking that. So now her foot, her steps had become slow. Then she saw the painter standing by the torrent and asked in confusion, "What do you want of me?" "Only some work from your hands." "What kind of work would you like?" "Let me make a colored ribbon for your hair," he answered. फिर अगले दिन फिर जब वो लड़का देखता है लड़की जा रही है, तो ये मैन उसे पूछता है कि मुझे फिर से कुछ काम दोगी। अब वो बोलते अब कौन सा काम करना पसंद करोगे? तो वो उसे उनके रिबन को मांगता है। और वो कहता है कि मैं उसको कलर्ड रिबन कर कर दे दूंगा आपको। So he asks for the ribbon and he says that I will color the ribbon for you and give. So he says, she asks, the girl asks, लड़की पूछती है क्यों? For what? He says nothing, कुछ नहीं, ऐसे ही। Ribbons were made bright with colors. फिर वो उसे ribbon दे देती है. She gives the ribbon and this person he again draws it and make it very colorful and again give back to the girl. अब ये जो मैन होता है ये फिर रिबन लेता है, उसमें कलर करता है और बहुत सारे रंग बिरंगे कलर्स करके उसे दे देता है। अब ये लड़की और कंफ्यूज हो जाती है और बहुत सारे वक्त उसमें वेस्ट कर देती है और जो होता है अपने बाल बनाने लगती है जो कभी पहले नहीं उसे टाइम मिला था। So like she becomes busy in the useless work. She starts staring at the ribbon and then she tries to put her hair and which she did not do before. And
because of that she had many work unfinished, she had many pending works, और इस वजह से बहुत सारा काम उनका पेंडिंग हो गया था। और जो पूरे वर्कर्स पैराडाइज में थे, बहुत सारे काम को पीछे छूट गए थे, बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए थे, सब सफ़र करने लगे और उन्हें लग रहा था ये टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है सारे यूजलेस थिंग्स में, व्हाई इज द टाइम बीइंग वेस्टेड इन यूजलेस थिंग्स, इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर, ये पेंटिंग स्कल्पचर ये सब तो फालतू के काम है, इट इज यूजलेस वर्क, व्हाई आर द पीपल वेस्टिंग टाइम इन दिस, व्हाट हैज हैपेंड, दे वर थिंकिंग लाइक दिस। द एल्डर्स बिकेम वेरी एंशियस, जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें बहुत बहुत चिंता होने लगी इस चीज की, और फिर एक मीटिंग बुलाया गया, द मीटिंग वाज कॉल्ड देयर फॉर टू get the solution for this, and then they all took out the history like never before it had happened in the workers paradise like this। इस तरीके से कभी वर्कर्स पैराडाइज में पहले कोई काम पेंडिंग नहीं हुआ था, या तो यूजलेस थिंग में कभी किसी ने वक्त को जाया नहीं किया था। देन द एरियल मैसेंजर हरीड इन, फिर वो एक एरियल मैसेंजर जो ये मैन को लेकर आए थे वो आते हैं और वो सबके सामने झुककर कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने गलत इंसान को इस पैराडाइज में लेकर आया है, सब मेरी वजह से हो रहा है। Then this Adel messengers who comes inside in the meeting, he bows in front of elders and he makes a confession. He asks sorry for them and he says that I'm guilty that I bought a wrong person in this paradise. It's my mistake. It's all because of me. What is happening? Then the man was summoned, the man was called there, उस मैन को बुलाया जाता है मीटिंग में और फिर वो आता है एल्डर्स के सामने, एकदम बहुत ही फैंटास्टिक ड्रेस, हिज क्वेंट ब्रशेस एंड पेंट्स और अपने सारे सामान लेकर अपने गंदे से ड्रेस के साथ आकर सबके सामने खड़ा हो जाता है, और जो कि वहाँ पर उस वर्कर्स पैराडाइज में ज़रा भी फिट नहीं होता था, राइट सॉर्ट ऑफ पर्सन था ही नहीं उसके लिए, एंड ही वॉज नॉट अ राइट सॉर्ट ऑफ पर्सन टू बी इन वर्कर्स पैराडाइज। Stiffly, the president said, "There is no place for the person like you. You must leave." और फिर वहाँ जो प्रेसिडेंट होता है उस मीटिंग का, वो उन्हें कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए इस पैराडाइज में कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। He just tell him to move from the place, leave the place and go. The man sighed in relief and gathered up his brush and paints. अब ये जो मैन होता है वो तो खुश हो जाता है, एक सुकून की सांस लेता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं अपने सही जगह पर जाकर पहुंचूंगा। अपने ब्रश और पेन सारे सामान अपने समेट कर वो जाने लगता है। So this man, he sighed in relief, means he had a bit relaxation because he knew that that place was not suitable for him. So now he gathered his brush and paints and all the belongings and he was all about to move. And there itself he heard the cry of a girl, "Wait a moment, I shall come with you." तो जैसे ही वो तैयार होता है जाने के लिए अपना सारा सामान उठाकर समेट कर, उसे आवाज आती है, "वेट अ मोमेंट, रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।" अब ये एल्डर्स दे आर इन सरप्राइज, दे आर लुकिंग इन सरप्राइज, सब सरप्राइज्ड है। नेवर बिफोर हैड अ थिंग लाइक दिस हैपेंड इन वर्कर्स पैराडाइज, अ थिंग दैट हैड नो मीनिंग एंड नो पर्पस एट ऑल। क्योंकि इस तरीके का कोई काम पहले वर्कर्स पैराडाइज में हुआ ही नहीं था कि जिस बिना मतलब के, बिना कोई पर्पस के कोई कुछ काम किया जाए। सो दिस वाज वेरी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज हैपनिंग इन द वर्कर्स पैराडाइज दैट अ मीनिंगलेस एंड अ यूजलेस थिंग वाज हैपनिंग। So everybody gasped, this girl and her cry, and even this man, and this is how the meeting ended by the leaving of the paradise of this man। And here we come to end with the chapter। तो यहाँ पर हम अपना लेसन खत्म करते हैं लर्नर्स। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन and I hope this video was informative for you. If you liked it, hit the like button,